Hello students. Now the second part of staffing, which includes all your recruitment and different sources of recruitment, right? As we know, we have already done, there are different sources of recruitment, that is your internal sources as well as external sources of recruitment. So what are the internal sources of recruitment? जो कि organization में अंदर से होते हैं recruited within the organization, और externally recruitment that is from outside the organization. Okay, so recruitment can be within the organization and outside the organization. So we have to start with different sources of recruitment. So now staffing part 2 contains what is recruitment. First, recruitment means identifying the source of required staff and contacting the source to attract a sufficient number of candidates from which the choice can be made. तो रिक्रूटमेंट मीन्स क्या, आइडेंटिफाई करना क्या सोर्स है स्टाफिंग के लिए, कांटेक्ट करना सोर्सेज को, ठीक है, ताकि सफिशिएंट जो कैंडिडेट्स मिल सकें चॉइस के लिए आपके रिक्रूट करने के लिए. रिक्रूटमेंट में it is a process of searching for prospective candidates or employees and encouraging them to apply for the job in the organization. तो यह सर्च करना prospective candidates को, employees को, और encourage करना them को कि वो organization की jobs के लिए apply करें. Sorry, recruitment is a positive process. Why? Because it creates a pool of candidates from which a good choice may be made to fill job vacancies in the organization. As I told you, रिक्रूटमेंट हमारी पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है. पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है रिक्रूटमेंट? क्योंकि ये एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स को इनवाइट करती है ताकि एक गुड चॉइस हो सके जॉब वैकेंसीज को फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ रिक्रूटमेंट में क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या किया जाता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ एडिक्वेट नंबर एंड राइट टाइप ऑफ पर्सनल. ठीक है, एडिक्वेट हो सके मतलब एक सप्लाई अच्छी हो, नंबर में हो, क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज भी. ठीक है, राइट टाइप की जो चाहिए वही अप्लाई करे. देन पब्लिसाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, advertisement for vacancies in the newspaper so as to stimulate the prospective candidates to offer themselves for employment. So है publicizing information for about job vacancies in the organization, advertisement for vacancies, newspapers, journals, through TV as well ताकि stimulate कर सके candidate को so they offer their employment to the organization. Then assessing alternative source of manpower and choosing the best source. assess करना अलग अलग sources को और उसमें से best choice select करना और फिर contacting the chosen source of recruitment. और फिर जो chosen source है recruitment का उससे contact करना. possibly like मान लीजिए वो campus placement के through करना चाहते हैं तो आपकी campus जो आपकी companies हैं उनको invite करें कि campus में आके वो interview ले. they want to just use the source like they want to go for the internal sources तो internal sources में करेंगे, फिर advertisement नहीं करते हैं. if they choose the source as like they have chosen the employment exchange, right? So or they have chosen your like placement agencies, so that can be chosen and that can be the आपके उनको जो है अप्रोच किया जाएगा प्लेसमेंट एजेंसीज को कि उन्हें जो है सो एंड सो जॉब्स आर देयर and they want to fill up the vacancies and this is the qualification they require for different jobs. Okay, now sources of recruitment is there internal sources and external sources. internal sources क्या हमारे promotion, transfer या re-employment या rehiring. एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से हैं हमारे? एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पर्सनल कंसल्टेंट्स, कैजुअल कॉलर्स, फैक्ट्री गेट, रिकमेंडेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स. तो इंटरनल सोर्सेज क्या हो गए? These refers to people already employed in the organization or recruitment from within the organization. Vacancies at higher level may be filled up by promotion, right? And or we can say by promoting persons from lower levels. Now promotion
It means shifting an employee to a higher post, carrying greater salary, greater status, and greater responsibility. It involves upward mobility. कैसा है ये? Upward mobility है आपकी. It is a vertical movement upward. Transfer, it refers to shifting an employee to a similar job with no changes in salary, no changes in status, and no changes in responsibility. It involves horizontal mobility. ठीक है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर देना. Then reemployment और rehiring क्या है? Reemployment refers to the act of hiring or being employed again. दोबारा से employ कर लेना, typically after a period of unemployment, separation or retirement. It signifies returning to the workforce, whether in a previous industry or a new one, and can involve being rehired by a former employer. ठीक है, former employer उसको employer दोबारा से उसको hire कर लेता है, तो this is called to be re-employment or rehiring. एडवांटेजेस क्या है इंटरनल रिक्रूटमेंट के? हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. फेमिलरिटी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फेमिलर रहती है आपके लोगों से जिनको वो हायर पोस्ट पे दे रही है या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेज रही है. सो इससे क्या होता है, उनके टाइम और एफर्ट्स दोनों बचते हैं. टेस्ट, इंटरव्यूज, रेफरेंस चेक्स वगैरह नहीं करने पड़ते, जो सारी प्रोसेस उन्हें सिलेक्शन के टाइम पर करनी पड़ती है. सो दूसरा, एम्प्लॉय भी फेमिलर होता है अपनी जॉब विद द जॉब रिक्वायरमेंट्स और वर्किंग कंडीशंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए से, तो उसे भी ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती. देन इकोनॉमी, मिनिमम कॉस्ट होती है आपकी इंटरनल सोर्सेज में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करने में और इंड्यूस करने में आपके लोगों को जो है कोई मनी स्पेंड नहीं करनी पड़ती. थर्ड इज मोटिवेशनल वैल्यू. इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है हमारी सोर्स है मोटिवेशन और एनकरेजमेंट का, क्योंकि एम्प्लॉयज को लगता है कि उनको प्रमोशन या ट्रांसफर मिल जाएगी जॉब में ही, तो वो क्या है अपना काम जो है अच्छे से करते हैं. दे डू देयर वर्क एफिशिएंटली, राइट, सो एज टू अर्न द डिजायर्ड प्रमोशन एंड ट्रांसफर. नेक्स्ट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैलेंट. हमारा जो ये सोर्स है इंटरनल रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन और ट्रांसफर जो है एंटरप्राइज को एक बेस्ट यूज करता है, यूज करने के लिए जो एनकरेज करता है उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के टैलेंट को. इट रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटेज. देन लेस टाइम कंज्यूमिंग. नो टाइम इज कंज्यूम्ड ऑन एडवर्टीजमेंट एंड कंडक्टिंग टेस्ट, इंटरव्यूज, रेफरेंस चेक्स एटसेट्रा. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज? अब इसमें कमियां क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट इज लिमिटेड चॉइस. इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट होती है चॉइसेस में, क्योंकि सुटेबल कैंडिडेट्स में नॉट बी अवेलेबल इंटरनली फॉर ऑल द वैकेंसीज. कुछ केसेस में जो है बाहर से वैकेंसीज फिल करनी ही पड़ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और दोज विच आर बीइंग क्रिएटेड आफ्टर प्रमोटिंग द पर्संस, जो आपकी वैकेंट रह जाती हैं जॉब्स, उनको फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बाहर जो है रिसोर्सेज, जो बाहर के रिसोर्सेज पर अप्रोच करनी पड़ती है. इनकम्प्लीट सोर्स है. इट इज एन इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एज ऑल द वैकेंसीज कैन नॉट बीइंग फिल्ड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. देन इन ब्रीडिंग. इन ब्रीडिंग क्या हुआ कि आपके अंदर के ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही अंदर ही रह गए, नया ब्लड, नया थॉट्स, नई इंटेलिजेंस बाहर से अंदर नहीं आती है. Too much of dependency on internal sources restrict the entry of fresh blood available outside. Existing employees may continue to work and behave in old ways even after promotion and transfers. तो कुछ नया जो inventions या innovations या नया intelligence, new methods बाहर से नहीं आते. Lack of competition. In the absence of competition from qualified candidates from outside, employees expect automatic promotion by seniority. They may become lethargic when they are sure of time-bound promotion. जब उन्हें पता है कि उन्हें टाइम बाउंड प्रमोशन मिलनी ही है, वही आपको सीनियर लेवल पे जाएंगे, तो क्या है वो लेथार्जिक हो जाते हैं कि उन्हें कोई भी जॉब से निकाल नहीं सकता और वो प्रमोशन उनको मिलेगी मिलेगी. सो वो अपना बेस्ट एफर्ट नहीं लगाते. फिफ्थ इज कॉन्फ्लिक्ट्स. देयर मे अराइज कॉन्फ्लिक्ट अमंग द एम्प्लॉइज हु aspire for promotion. Employees who are not promoted become unhappy and their efficiency may decline. Okay, तो जो हो गए एम्प्लॉइज प्रमोट हो जाते हैं और जो नहीं प्रमोट हो जाते, उन दोनों के बीच ही कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, और जो नहीं होते हैं वो अनहैप्पी रहते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी डिक्लाइन हो जाती है.
नाउ व्हाट इज आर डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन एंड ट्रांसफर? हमने पढ़ा प्रमोशन और ट्रांसफर, तो दोनों में फर्क क्या है? प्रमोशन क्या है? इन प्रमोशन वैकेंसीज एट हायर लेवल मे बी फिल्ड अप बाय प्रमोटिंग पर्सन्स हु आर वर्किंग एट लोअर लेवल। तो जनरली कैसे प्रमोट करके नीचे से ऊपर के लेवल पे उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। बट ट्रांसफर्स एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में, या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर देते हैं आपके पर्सन को। दैट इज कॉल्ड टू बी ट्रांसफर। Promotion involves shifting an employee to a higher post, carrying at higher status, higher salary, higher responsibility, or transfer shifting employee similar job without any increase in salary, without any increase in status or responsibility. Promotion जो है एक वर्टिकल और अपवर्ड मोबिलिटी है, और ट्रांसफर जो है एक हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। नाउ दिस इज ऑल for this part 2 of this chapter, children. I hope you are enjoying your revision. So I'm just providing you the third part as well. So continue with your revision. Thank you, students.